ایک عورت اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے جو اس کو فطری عطا ہے اس سے ہٹ کر جب روحانیت میں قدم رکھتی ہے تو اس کے ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو، جب آپ اپنی فطرت کی جو عطا ہے، اپنی فطرت کے جو اسما اس کی صفات کا انکار کرتے ہو تو در حقیقت تم قدرت کے جمال کا انکار کر رہے ہوتے ہو۔ آسان الفاظ میں کہ رب تعالیٰ کی ذات نے جو چیز تمہاری ذات کے اندر رکھی تم اس چیز سے انکار کرتے ہو، وہ انکار ایک کفر کے مترادف ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے جو رب نے تمہاری اندر صفات رکھی، تمہارے قلب میں جو آئینہ ہے اس آئینے کے اندر جو صفات متجلی ہوئی روز ازل، اس چیز سے انکار کر کے تم ایسے رستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہو جس چیز کی ساخت کے لیے تمہیں بنایا ہی نہیں گیا۔ اس چیز کو آج ہم ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ فطری جو اوصاف عورت کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کی ہے وہ کون کون سے ہیں، اور کیا عورت غلطی کرتی ہے جس کی وجہ سے اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات روحانیت چھین لیتا ہے یا وہ روحانیت میں کچھ حاصل نہیں کر پاتی۔ دیکھو، پہلے بات کرتے ہیں فطری اوصاف کی۔ فطری اوصاف کی جب بات کی جاتی ہے نا، میل اور فیمیل کنسیپٹ کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کو آپ صرف ایک مرد یا ایک عورت کے مٹی کے وجود تک محدود نہ رکھ کے دیکھو، اس کو آپ اوصاف کی حد تک لے کے جاؤ، وصف کی حد تک، ایٹریبیوٹس کی حد تک اس کو لے کے جاؤ، ایک یونیورسل ٹروتھ کی حد تک اس چیز کو لے کے جاؤ کہ رب العزت نے دو چیزیں عطا کی ہیں تم کو۔ ان اوصاف کو پہلے میں آپ سے ڈیپلی ڈسکس کرنا چاہوں گا تاکہ آپ اس کو سمجھ پائیں۔ اس کے بعد میں آپ کو 5 وہ چیزیں بتاؤں گا جو فطرت نے، رب العزت نے ایک عورت ذات کے اندر رکھی، جس ڈومین میں رہ کے اگر وہ کام کرے گی روحانیت میں تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات عرش فرش کی سیر کروائے گی، ہر طرح کی چیز جو وہ چاہتی ہے اسے عطا ہو جائے گی، عالم امر تک کی سیر بھی اسے کروا دی جائے گی۔ لیکن اس سے اپوزٹ اگر وہ چلنے کی کوشش کرے گی تو در حقیقت وہ رب تعالیٰ کی ذات کی جو عطائیں ہیں اس سے وہ بغاوت کر رہی ہے، جو ایک انتہائی گہری چیز ہے۔ اس کو آج ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے بڑا ڈیپلی جا کے۔ لیکن فطری اوصاف فیمیل کے اندر جو عطائیں ہیں وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ غور کرو، سورج کی جانب دیکھو، سورج کا کام ہے جلنا، سورج کا کام ہے چمکنا، سورج کا کام ہے کرن کو خارج کرنا، تجلی نکالنا، روشنی نکالنا، اپنی کرنیں بھیجنا۔ سورج کی یہ ڈیوٹی ہے جو ایک حق کی طرح ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے۔ لیکن زمین کا کام ہے انہی کرنوں کو جذب کرنا، انہی کرنوں کو قبول کرنا، اپنے اندر موجود جو دانہ ہے، جو بیج ہے، اس کو خاص ماحول پرووائڈ کرنا، سورج کی روشنی کو جذب کرنا تاکہ وہ دانہ پھٹے اور وہ اپنے آنگن سے ایک ایسی ذات کو پیدا کرے، ایک ایسی پیداوار پیدا کرے جس سے انسانیت کا بھلا ہو سکے۔ تو یہاں پر عطائی سلسلہ کس کے پاس ہے؟ عطا کر رہا ہے سورج، ریسیو کر رہی ہے زمین، ریسیو زمین سورج کی لائٹ کو کر رہی ہے، اس کی انرجی کو، اس کی حرارت کو آبزرو کر رہی ہے، اپنے آنگن میں موجود بیج کو ایک خاص ماحول دے رہی ہے، اسے پھاڑ کر اپنے آنگن میں اس کی ایسی تحلیق پیدا کر رہی ہے جس کی وجہ سے انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے اور یہ قدرت کا نظام چل پاتا ہے۔ تو دونوں ضروری ہیں، زمین کا جذب کرنا، قبول کرنا بھی ضروری ہے، سورج کا عطا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور مثال ہے کہ دن کی فطرت دیکھو، دن چڑھتا ہے، رات کی فطرت دیکھو، رات اس کو قبول کرتی ہے، رات ڈھانپ لیتی ہے اس کو، دن جو ہے وہ رات کے آنگن میں جا کے سو جاتا ہے۔ تو دن کی اپنی کوالٹیز ہیں، اپنی فطرت ہے، رات کی اپنی کوالٹیز ہیں، اپنی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قلم کو بنایا، قلم ایک علم ہے، اس کا اپنا ایک قیادت ہے، اپنا ایک نالج ہے، اپنا ایک شعور ہے۔ اس لو کو دیکھو، وہ لو اس قلم کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ اپنی ذات کے اندر تمام چیزوں کو درج کر لیتی ہے، محفوظ کر لیتی ہے، پناہ دیتی ہے۔ تو قلم اور لو، دن اور رات، سورج اور زمین، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات نے صفات دے کر پیدا کی ہیں۔ سملر طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے عورت ذات کے اندر بھی صفات رکھی، مرد ذات کے اندر بھی الگ صفات رکھی، ہر کسی کی اپنی اپنی ڈومین ہے۔ پوری کی پوری یونیورس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو صفات تقسیم کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے۔ کسی کو اللہ نے جلال عطا کیا، کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جمال عطا کیا۔ جمال بھی رب کی ذات کی صفت ہے، جلال بھی رب کی ذات کی صفت ہے۔ تو عورت ذات کے اندر جو جمال ہے، خوبصورتی ہے، در حقیقت رب تعالیٰ کی ذات کی صفات کا آئینہ ہے۔ مرد کی ذات کے اندر جو جلال ہے، در حقیقت رب کی ذات کی صفات کا آئینہ ہے۔ اسی ڈومین میں رہ کر ہر کسی نے اپنا اپنا کام کرنا ہے۔ اگر زمین سورج جیسا بننا چاہے تو زمین اپنے کام سے انکار ہی کر رہی ہے، رب تعالیٰ کی ذات کی آیت کا، رب تعالیٰ کی ذات کی صفات کا کفر کر رہی ہے۔ زمین کے لیے یہ طے ہے کہ تمہاری یہ فطرت ہے کہ تم نے یہ کام کرنا اور بخوبی وہ انجام دے رہی ہے۔ اسی طریقے سے عورت کی ذات کے اندر بھی یہ صفات موجود ہے، جس ڈومین میں رہ کے اس نے کام کرنا ہے
अगर वो इस डोमेन से बाहर जाने की कोशिश करेगी तो वो रूहानियत उससे छीन ली जाएगी। 5 चीजें हैं जो मैं बहुत सारी सिफात में से सिर्फ 5 मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ज्यादा हाईलाइट है, जिसको जरूर डिस्कस करना चाहिए। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर आप गौर करो तो औरत जात के अंदर कबूलियत की जो सिफत है अल्लाह ताला की जात ने इसको अता की हुई है, उसको कबूल करना होगा, अल्लाह ताला की जात की रज़ा में राज़ी रहना। देखो कबूल करना, कबूलियत जो है ये कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये दिल के खुला होने की निशानी है। आपको अपने दिल को खोल करके रखना है। अल्लाह ताला की जात का हक जो है, अल्लाह ताला की जात का सच जो है, अल्लाह ताला की जात की जो अता है आपको कबूल करनी होगी, उसको नकारना नहीं होगा। अल्लाह ताला की जात के फैसलों में खुद को राज़ी करना होगा। यहाँ पर आकर अगर किसी जात के अंदर, किसी औरत के अंदर ये ख्याल आता है कि औरत जात के अंदर ये चीज़ें हैं, मर्द जात के अंदर ये चीज़ें हैं, मैंने मर्द का मुकाबला करना है, मैंने उसके हम असर बनने की कोशिश करनी है, तो दर हकीकत जो सिफात, जो जमाल अल्लाह ताला की जात ने कबूलियत का उसे अता किया होगा, उससे वो इनकारी कर रही होगी। और ये एक औरत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान भी है कि इम्तिहान कैसे है कि अगर उस चीज को कबूल करने में, इस दिल को खुला करने में, इसको औरत जात अपनी जात के अंदर फील करे, तो ये नफ्स का मुहासबा है। नफ्स उससे बोलेगा कि तुझे मर्द के बराबर जाके खड़ा होना, तूने अपनी डोमेन से निकल के उसकी डोमेन में जाने की कोशिश करनी है। नफ्स तुम्हें दुनिया दिखाकर वहां पर लेके जाने की कोशिश करेगा। यहीं पर आकर तो खेल है। नबी पाक ने फरमाया था ना कि नफ्स की जो जिहाद है वो सबसे अफजल है और सबसे बड़ी जंग है। ये बहुत ही एक तवील जद्दोजहद के बाद इंसान अपने नफ्स का मुहासबा कर पाता है। तो औरत का पहला इम्तिहान ही यहीं पर आ गया कि अल्लाह ताला की जात ने उसके अंदर ये सिफ्त रखी कि उसने अपनी जात के अंदर उस दाने को कबूल भी करना है, उसको फाड़ना भी है, उसको तहलीक करना है, अपनी जात के अंदर से फायदा देना है। तो उसके लिए जरूरी है ना कि अपने दिल को खुला करे, अल्लाह ताला की जात ने जो उसको अता किया उसको कबूल करे। ये कबूल करना फितरी चीज है। जैसे जमीन की फितरत है दाने को कबूल करना, जैसे रात की फितरत है दिन को अपनी आंगन में जगह देना, जैसे लोह की फितरत है कलम को अपनी जात के अंदर दर्ज कर लेना, इसी तरीके से अल्लाह ताला की जात का जो जमाल की सिफात है उसके अंदर ये सिफ्त है कि अल्लाह ताला की जात के जलाल को कबूल करे। कबूल कर लेना ही सिफ्त खुदाबंदी है जो अल्लाह ताला की जात ने एक औरत के अंदर रखा हुआ। और ये खुले दिल से जो औरत कबूल करती है, ये अल्लाह ताला की जात की उस डोमेन में रह के रूहानियत का सफर कर रही है। तो पहला वस्फ है कबूलियत, जिसको आप नफ्स का मुहासबा कह सकते हो, जिसके थ्रू अल्लाह ताला की जात ने एक औरत को करवाना है। दूसरा है परवरिश। देखो परवरिश सिर्फ बच्चों की नहीं है, आपके आंगन में जो भी आए, जो भी आपके आंगन में आया, आपके घर में आया, आपके साए के तले आए, अगर कोई भूखा है उसको सैर करना भी परवरिश है, अगर कोई जाहिल आए उसकी तरबियत करना भी परवरिश है, अगर कोई ऐसा बंदा है जो नहीं जानता तो उसको इल्म अता करना भी परवरिश है। दूसरों की सलाहियत को परवरिश देना ताकि वो परवान चढ़े और चमक उठे, ये परवरिश की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की जात ने एक औरत की लगाई हुई। ये उसकी डोमेन है, जिस डोमेन के अंदर रह के औरत ने अपना हक अदा करना है। अगर कोई जाहिल आ गया तो उसको इल्म देना है, अगर कोई भूखा आ गया तो उसको सैर करना है। ये सारी की सारी चीज अल्लाह ताला की जात ने एक औरत के अंदर रखी हुई है। और औरत अगर अपनी फितरत को बखूबी एनालाइज करे, अपनी जात के अंदर डूब के, तो वो ये देखेगी कि ये चीज उसके अंदर फितरी तौर पर मौजूद है और इस चीज में वो महारत रखती है। इसी महारत के अंदर रह के उसने काम करना है, तभी वो अल्लाह ताला की जात के करीब जा सकती है। देखो जमाल, अल्लाह ताला की जात का जलाल भी है, अल्लाह ताला की जात का जमाल भी, अल्लाह ताला की जात की सिफ्त है। जमाल क्या है? ब्यूटी। जमाल क्या है? खूबसूरती। तो अल्लाह ताला की जात ने एक औरत को खूबसूरत बनाया, मर्द को कव्वी बनाया, ताकतवर बनाया मजदूरी करने के लिए। एक औरत को अल्लाह ताला की जात ने जमाल दिया, खूबसूरती दी ताकि इसका लाड किया जाए, इसको प्यार किया जाए। तो ये चीज अल्लाह ताला की जात ने औरत के अंदर रखी। लेकिन ब्यूटी सिर्फ चेहरे की नहीं है। यहीं पर आ गया, मार खा रहा है, सिर्फ मेकअप करना, खुद को बना के रखना, ये ब्यूटी नहीं है। ब्यूटी किरदार की भी है। औरत जात के अंदर वो खूबसूरती मौजूद है, उसके किरदार की खूबसूरती, उसकी नरम गुफ्तगू, पाकीज़ा दिल, उसका सलीका और बावकार रवैया, ये खूबसूरती असल जो अल्लाह ताला की जात ने उसको अता की। इसकी डोमेन उसने अपनी सेट करनी है, अपने आप को उस जगह पे लेके जाना कि सिर्फ चेहरे की खूबसूरती नहीं चाहिए, एक जात बननी है आपने, जो एक खूबसूरत जात होती है। जमाल, अल्लाह का जमाल नजर आए, खूबसूरती नजर आए कि अल्लाह ताला की जात ने कितनी आला मखलूक तहलीक की है। तो ये जमाल उसके अंदर दिखना चाहिए, पाकीज़गी दिखनी चाहिए, किरदार दिखना चाहिए, नरम रवैया दिखना चाहिए, मिठास दिखनी चाहिए, हर चीज उसके अंदर नजर आनी चाहिए। नंबर 4 देखो मोहब्बत। अल्लाह ताला की जात ने औरत को तस्कीन का बनाया, मोहब्बत के लिए पैदा किया था। लेकिन मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती। मोहब्बत से मुराद बिल्कुल ये नहीं है कि किसी की जिस्मानी शहावत पूरी करो, नहीं। मोहब्बत से मुराद है हैर होई,
आप लोगों के दर से, आप लोगों के घर से खैर निकलनी चाहिए, लोगों की खैर हुई आपने करनी है। ऐसे ही समझ ले सिंपल वर्ड्स में कि कोई जख्मी आपके पास आ जाए तो आपने मरहम करना है, किसी का दिल टूटा हुआ है उसको संभालें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला की ज़ात ने ज़मीन की जानिब धकेला, ज़मीन की जानिब उतारा, तो उनके बेटों ने आकर लड़ाई की, एक ने दूसरे को मार दिया, तो बहुत बड़ा दुख पहुंचा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, टूट गए थे वो अंदर से। तो संभाला किसने? अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने। उनके अंदर वो वस्फ थे, वो तस्कीन गाह थी जिन्होंने संभाला। तो उस सिफ्त को अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने पूरे तरीके से इस्तेमाल किया और अल्लाह ताला की ज़ात भी राजी हुई, रूहानियत भी मिली और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनने तस्कीन भी दी, उनको डांप लिया, उनके जख्मों के लिए मरहम का काम उस औरत ने किया, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने। पांचवा देखो, रहमत। रहमत है औरत की डोमेन है, रहमत है वो वस्फ है, रहमत है। अल्लाह फरमाता है कि मेरी रहमत मेरे कहर को ढांप लेती है। आपके अंदर ऐसा वस्फ पैदा होना चाहिए, ऐसी सिफात पैदा होनी चाहिए कि आपके घर पे जब कोई ऐसा फर्द है जो लाल पीला सुर्ख लड़ा, ऐसे जैसे कोई मार देगा किसी को, लेकिन आपके ऊपर आपकी ज़ात के अंदर इतनी रहमत झलकनी चाहिए कि आपके सामने आने के बाद उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाए, बिल्कुल काम डाउन हो जाए और वो अपने 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 कमाल से आप उसको पुरसकून कर पाओ। तो ये वस्फ भी औरत ज़ात के अंदर मौजूद है। तो ये एक डोमेन है औरत, किस डोमेन के अंदर रह के जो औरत काम करती है, अल्लाह ताला की ज़ात उसको फिर हक तक लेके जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी जो उसका मकसद हयात था उसने पूरा किया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ज़मीन ने उस दाने को कबूल किया, फाड़ कर उसकी तहलीक की और पूरी दुनिया कुदरत का निज़ाम चलता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज ने अपनी किरण दी और ज़मीन ने उसको जज़ब कर लिया, जैसे दिन चढ़ा उस रात ने उसको कबूल कर लिया, अपने आंगन में जगह दी, जैसे कलम ने अपने इल्म को लोह के अंदर आश्कार कर दिया, उसने कबूल कर लिया। तो ये कबूल कर लेने वाले जो वस्फ है ना, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने औरत को दे के भेजी। और रब ताला की ज़ात के ये जो सिफात हैं जो मुतजल्ली हैं एक औरत के अंदर, उसको अपनी डोमेन में रब का जलाल ज्यादा झलकता है, उसका आईना ज्यादा झलकता है हक के अंदर और मर्द के अंदर, उसकी सिफात ज्यादा झलकती हैं क़यादत वाली, उसके अंदर सिफात झलकती हैं लीड करने वाली, मकसद को पूरा करने वाली, लड़ने वाला, ये सब कुछ एक मर्द के अंदर। लेकिन औरत ज़ात के अंदर जो सिफात है वो जमाल है दोनों रब की अताएं। अगर आप इस डोमेन से निकलकर इस डोमेन में आने की कोशिश करेंगे तो दर हकीकत आप किसका इनकार कर रहे हो? रब के जमाल का इनकार कर रहे हो, जो एक्चुअली में अगर सादा अल्फाज में बोला जाए तो रब की ज़ात की सिफात की जो मुतजल्ली है आपकी ज़ात के अंदर अवेकन, उसका आप इनकार कर रहे हो, जो एक इश्क की नज़र में कुफर है, जिसकी वजह से रूहानियत आपसे छीन ली जाएगी। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।